کیا آپ مسیح کے لیے بھوکے ہیں؟ کیا آج آپ پیاسے ہیں؟ کیونکہ مجھے اپنی زندگی میں کوئی دوسرا مذہب درکار نہیں. میں مذہبی زندگی گزار چکی، میں اسلام میں رہ چکی. میں بس آزاد ہونا چاہتی ہوں. اور ایسے شخص کے ساتھ کچھ ایسا ہی پیش آتا ہے. یہ چھوتا ہے، قبول کرتا ہے، یا فتح کی صورت بنتا ہے، اور یہ یسوع مسیح ہے. شاید یہاں بیٹھے ہوئے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تبدیلی کی ضرورت ہے، کیونکہ میں اس مقام پر مزید رکے ہوئے نہیں رہنا چاہتا. اب یہ سب سے بڑی کٹائی کا وقت ہے. یہ بیداری کی گھڑی ہے کہ خدا آئے اور ہر چیز کو بدل ڈالے. سلام دوستو، میرا نام عشق آبلہ ہے اور میں آپ کو اپنے نئے پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں. نئی زندگی کو گلے لگانا. جی ہاں، نئی زندگی کو گلے لگانا. میں نہیں جانتی کہ روحانیت میں آج آپ کہاں ہیں، لیکن خدا آپ کو پیش کر رہا ہے ایک بالکل مفت تحفے میں ایک نئی زندگی. اور وہ نئی زندگی، وہ مفت تحفہ صرف اس طرح سے حاصل کیا جا سکتا ہے کہ صرف یسوع مسیح کے بے عیب خون کے ذریعے. خداوند یسوع مسیح کو اپنا خداوند اور نجات دہندہ قبول کر کے. اور میں مسیح کے بارے میں تجسس میں ہوں. میں اس لیے تجسس میں ہوں کہ خدا کیا کر رہا ہے اور اس بات کو بانٹ رہا ہے کہ کس طرح وہ انسانیت کی تخلیق سے سب کر رہا ہے. وہ ہمیں پیار کرتا ہے اور میں خدا کے کلام کو اہمیت دیتی ہوں. بائبل مقدس انسانیت کے لیے اس کا پیار بھرا پیغام. شاید آج آپ پیار محسوس کرنا چاہتے ہوں. شاید آپ نے تمام زندگی اپنے والدین کی طرف سے تردید میں گزاری ہو، آپ کے دوستوں کی طرف سے، آپ کے ہمسایوں کی طرف سے بھی. لیکن آج میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ یہ جانیں کہ خدا آپ کو قبول کرے گا. آپ جو کوئی بھی ہو، وہ آپ سے پیار کرے گا. کس مذہب سے ہیں، کس تہذیب یا قبیلے سے آپ کا تعلق ہے، یہ کچھ معنی نہیں رکھتا. وہ آپ سے پیار کرے گا اور وہ محبت ہے. خدا محبت ہے. یہ ہمارا پیغام ہے. اور میں یسوع مسیح کے نام میں دعا کرتی ہوں کہ یہ پیغام آپ کی زندگی میں تبدیلی پیدا کرنے کی طاقت بنے اور آپ کی قوم کی زندگیوں میں. جی ہاں، خدا آپ کی قوم کو بدل سکتا ہے. آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی منفرد پیغام بانٹنا چاہتی ہوں، کلام خداوند کا بہت ہی خاص حساب کے ساتھ، اور یہ ہماری زندگیوں میں استعمال ہوگا. آپ میں سے بہت سے، اگر آپ میں سے یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، آپ ضرور بائبل مقدس میں ابراہیم کے حوالے سے متعارف ہوں گے. لیکن اگر آپ مسیح کو نہیں جانتے، اگر آپ بائبل مقدس کو نہیں پڑھتے، یا آپ کی کتاب کوئی اور ہے اور آپ اسے اپنے خدا کا کلام کہتے ہیں، آج میں آپ کو اس مقدس کلام سے چیلنج کرتی ہوں تاکہ آپ سوالات پوچھنا شروع کریں کہ کیا ہو کہ جس چیز پر آپ ایمان رکھتے ہیں وہ صحیح نہ ہو. کیا ہو کہ آپ جس پر ایمان رکھتے ہو وہ ختم ہو چکا ہے اور آپ کو بچا نہیں سکے گا. میرے دوستو، یہ بہت اہم سوال ہے. یہ آپ کی زندگی کا فیصلہ ہے جو آپ آج کر سکتے ہیں، اور یہ تمام عمر آپ کی زندگی پر اثر انداز ہوگا. پیدائش اس کا 22 باب، امتحان کے بغیر، آزمائش کے بغیر کوئی بھی گواہی نہیں ہوتی. اور میں آپ کے ساتھ بہت اہم پیغام بانٹنا چاہتی ہوں، خدا کے آدمی کی خاص گواہی جو خدا کی فرما برداری کرتا ہے، کیونکہ خدا ہم سے فرما برداری چاہتا ہے. کلام مقدس کہتا ہے کہ اگر آج آپ اس کے کلام کو سنیں، اپنے دلوں کو سخت مت کریں. ہاللیلویہ. ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ خدا نے ابراہیم کو آزمایا اور اسے کہا، اے ابراہیم. اس نے کہا، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں. ابراہیم نے کہا. تب اس نے کہا کہ تو اپنے بیٹے اسحاق کو، جو تیرا اکلوتا ہے اور جسے تو پیار کرتا ہے، ساتھ لے کر موریا کے ملک میں جا اور وہاں اسے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر جو میں تجھے بتاؤں گا سوختنی قربانی کے طور پر چڑھا. تب ابراہیم نے صبح سویرے اٹھ کر اپنے گدھے پر 4 جامہ کسا اور اپنے ساتھ 2 جوانوں اور اپنے بیٹے اسحاق کو لیا اور سوختنی قربانی کے لیے لکڑیاں چیری اور اٹھ کر اس جگہ کو جو خدا نے اسے بتائی تھی روانہ ہوا. تیسرے دن ابراہیم نے نگاہ کی اور اس جگہ کو دور سے دیکھا. تب ابراہیم نے اپنے جوانوں سے کہا، تم یہی گدھے کے پاس ٹھہرو، میں اور یہ لڑکا دونوں ذرا وہاں تک جاتے ہیں اور سجدہ کر کے پھر تمہارے پاس لوٹ آئیں گے. اور ابراہیم نے سوختنی قربانی کی لکڑیاں لے کر اپنے بیٹے اسحاق پر رکھی اور آگ اور چھری اپنے ہاتھ میں لی
और दोनों इकट्ठे रवाना हुए। तब इसहाक ने अपने बाप इब्राहिम से कहा, ए बाप। उसने जवाब दिया कि ए मेरे बेटे, मैं हाजिर हूं। उसने कहा, देख, आग और लकड़ियां तो हैं, पर सोख्तनी कुर्बानी के लिए बर्रा कहाँ है? इब्राहिम ने कहा, ए मेरे बेटे, खुदा आप ही अपने वास्ते सोख्तनी कुर्बानी के लिए बर्रा मुहैया करेगा। सो वो दोनों आगे चलते गए और उस जगह पहुंचे जो खुदा ने बताई थी। वहां इब्राहिम ने कुर्बान गाह बनाई और उस पर लकड़ियां चुनी और अपने बेटे इसहाक को बांधा और उसे कुर्बान गाह पर लकड़ियों के ऊपर रखा। और इब्राहिम ने हाथ बढ़ाकर छुरी ली कि अपने बेटे को ज़िबा करे। तब खुदावंद के फरिश्ते ने उसे आसमान से पुकारा कि ए इब्राहिम, ए इब्राहिम। उसने कहा, मैं हाजिर हूँ। फिर उसने कहा कि तू अपना हाथ लड़के पर ना चला और ना उससे कुछ कर, क्योंकि मैं अब जान गया कि तू खुदा से डरता है, इसलिए कि तूने अपने बेटे को भी जो तेरा इकलौता है मुझसे दरेग ना किया। और इब्राहिम ने निगाह की और अपने पीछे एक मेंढा देखा जिसके सींग झाड़ी में अटके थे। तब इब्राहिम ने जाकर उस मेंढे को पकड़ा और अपने बेटे के बदले सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ाया। अजीज दोस्तों, यहाँ हम देख रहे हैं और हम इसे अभी बांट रहे हैं। ये बहुत खूबसूरत है, खुदावंद का ताकतवर कलाम बांट रहे हैं। यहाँ तक कि जब मैं इसे पढ़ रही हूँ, ये मेरे दिल के बहुत गहरे हिस्से में छू रहा है। वहाँ एक बाप था, वो खुदा की तरफ से आजमाया जा रहा है। वो उसका इकलौता बेटा ले रहा है, उसका वादे का बेटा, आजमाइश के लिए, ताकि वो सिर्फ एक जिंदा खुदा के लिए कुर्बानी करे। और ये शख्स अपने खुदा पर ईमान रखता है, वो खुदा को जाती तौर पर जानता है। लेकिन इस हवाले के शुरू में मैं आपकी तवज्जो सिर्फ एक इस जुमले पर ले आना चाहती हूँ कि जब खुदा ने उसे पुकारा, मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ। यही है वो ज़रूरी बात। तमाम हवाले में हम इसी लफ्ज़ या जुमले में हर जगह, जब सैमुएल को पुकारा गया, उसने कहा, मैं हाजिर हूँ, फरमा, तेरा बंदा सुन रहा है। ये सिर्फ खुदा के कलाम की बात सुनना नहीं, लेकिन खुदा के कलाम की फरमाबरदारी उनकी तर्ज जिंदगी का हिस्सा था। अगर आप छोटी आवाज़ों को सुन नहीं सकते, छोटे इम्तिहान, छोटे अल्फाज और खुदा के कलमात, तो आप बड़े भी नहीं कर सकते। खुदा ज़बरदस्ती से अपनी मर्जी किसी पर लागू नहीं करता। शायद आप उसे जानते हो। आप ये समझते हैं कि खुदा एक जालिम खुदा है, वो आपको कुछ करने के लिए कहता है, और अगर आप नहीं करते तो उसी वक्त सजा भी मौजूद है। लेकिन वो खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं, वो ऐसा नहीं है। कई बार वो बहुत थोड़ी आवाज़ से बात करता है, रुल कुद्स के जरिए, कि हम यसाया में ये देखते हैं, मैं हाजिर हूँ, मुझे भेज। जब खुदा ने ये पूछा कि हम किसे भेजें, और यसाया आगे बढ़ा और उसने कहा, मैं हाजिर हूँ, मुझे भेज दो। क्या ही इज्जत की बात है कि पुकारा जाए, लेकिन इससे बढ़कर इज्जत की बात, मैं हाजिर हूँ, मुझे भेजो। हम इब्राहिम से पहले से खुदा की पुकार तक हर जगह फरमाबरदारी ही देख रहे हैं। मैं नहीं जानती कि आप इस वक्त किस जगह हैं, आप दुनिया के किस हिस्से में से अभी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। और शायद ये लफ्ज़, ये बहुत ख़ास लफ्ज़, क्योंकि इब्राहिम इसहाक को मज़बा पर ज़िबा कर रहा है, शायद ये लफ्ज़ आपको नाराज़ कर रहा हो। बहरहाल मैं यहाँ आपको बताने और चैलेंज करने के लिए हूँ कि सिर्फ एक ही सच्चाई है, और अगर आप खुदा से पूछें, वो आप पर जाहिर करेगा। अगर आप खुदा से पूछें और उससे कहें, मैं सच्चाई जानना चाहती हूँ, मैं तुझे जानना चाहती हूँ, मैं तुझे महसूस करना चाहती हूँ, मैं तेरे करीब आना चाहती हूँ, लेकिन मैं तुझे ज़ाती तौर पर जानना चाहती हूँ। खुदा आपसे भी बात कर सकता है, जैसे उसने इब्राहिम से बात की। उसने इसहाक और सैमुएल और दाऊद और भी बहुत से लोगों से, क्योंकि वो ऐसा खुदा नहीं है जो कोई राज बनना चाहता है। वो ऐसा खुदा नहीं है जो खुद को एक राज रखना चाहता है। मैं चाहती हूँ कि आज आप उसके दिल को महसूस करें और आवाज़ सुने। वो आपके ज़रिए अपनी पहचान
करवाना चाहता है। आपको पहाड़ों को अबूर करने और तैर कर समुंदर पार करने की कोई जरूरत नहीं, उसे ढूंढने के लिए हजारों मील दूर जाने की। वो आपके करीब है, आपकी अपनी सांस से भी ज्यादा करीब, एक दुआ के फासले पर। जाहिर हो, खुद को मुझ पर जाहिर कर। मैं तुझे जानना चाहती हूँ, मैं तुझे जानना चाहती हूँ, मैं तेरे करीब होना चाहती हूँ। और इब्राहिम फर्मा बरदारी में है। खुदा का कलाम ये कहता है, मुझे कुर्बानी की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे फर्मा बरदारी चाहिए। फर्मा बरदारी कुर्बानी से ज़्यादा बेहतर है। मैंने आपसे पहले भी यही कहा, ताबेदारी में बहुत मौजज़ाना ताकत है। फर्मा बरदारी में बहुत ही मौजज़ाना ताकत है। लेकिन पहली फर्मा बरदारी जो वो खुदा को दिखाते हैं ये है कि उसके कलाम को कबूल करते हैं। पुख्तगी सच्चाई की पहचान है और सच्चाई की फर्माबरदारी है। और कई बार खुदा हमें ऐसी बातें बताता है जो हम सुनना नहीं चाहते। क्या आप सोचते हैं कि इब्राहिम जब वो उस जगह पर था, जब उसका इम्तिहान लिया गया, वो सुनना चाहता था, वो ऐसा करना चाहता था? एक बाप होते हुए और उसका इकलौता बेटा, एक बुजुर्ग आदमी होते हुए तमाम उम्र इस वादे के लिए इंतजार किया। वादा किया हुआ बेटा, उसका कीमती बेटा। वो एक बच्चा नहीं था, वो एक बड़ा बुजुर्ग आदमी था, लेकिन वो फर्माबरदारी में अपने बेटे को कुर्बान करने वाला था। और इब्रानियों में यूं मरकूम है कि उससे खुदा पर बहुत ज्यादा यकीन और एतमाद था कि उसने कहा, चाहे मैं अपना बेटा दे दूं और उसे कुर्बान कर दूं, वो उसे मुर्दा हालत से भी जिंदगी दे सकता है। उसका ईमान इस हद तक था, हम जानते हैं कि ये कलाम में से है। उसका अपने खुदा पर यकीन था। और खुदा का कलाम ये कहता है कि मैं तुम्हें कैसी भी आजमाइश में डालूं मायने नहीं रखता, मैं वहां मौजूद होऊंगा। आखिरकार जीत तुम्हारी ही होगी अगर तुम सिर्फ मुझ पर ईमान रखो। शायद आप इस तरह के इम्तिहानों और आजमाइशों से इस वक्त गुजर रहे होंगे। मैं चाहती हूँ कि आप सुने, मैं चाहती हूँ कि आप खुदा की आवाज़ सुने। मुझ पर ईमान रखो, मुझ पर ईमान रखो। अगर यीशु मसीह आपके साथ है और जब आप खुदा पर यकीन करते हैं, वो सब ठीक कर देता है। आखिरकार वो सब कुछ बिल्कुल ठीक कर देता है। आप ठीक होंगे। शायद आप अभी जिस इम्तिहान से गुजर रहे हैं, वो गहरे अंधेरे की वादी में जिससे आप गुजर रहे हैं, उसके वस्त में ये नामुमकिन नजर आएगा। लेकिन खुदा आपसे कहता है, मुझ पर यकीन करो, मुझ पर ईमान रखो, सिर्फ अपने दिल मेरे हवाले कर दो, खुद को मुझे सौंपते हुए हवाले करो। हालेलुया। जब आप खुद अपनी मंजिल का तयन करते हैं, जब आप सिर्फ खुद पर यकीन करते हैं, आप हैवान बना रहे हैं। पहले इब्राहिम ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया था। वो फर्माबरदार नहीं था, वो वादे के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। और फिर क्या हुआ? उसने बनाया, तब इस्माइल पैदा हुआ, वादे के बगैर। और आज आपसे मेरी गुजारिश, आपको मेरी नसीहत है कि अपना इस्माइल मत बनाएं। वादे के इज़हाक के लिए इंतज़ार करें। शायद आप आजमाइश के वक्त में तेज़ी से निकलना चाहते हो, आप आसानी और तेज़ी से निकलने के लिए खुद का छोटा रास्ता तलाश कर रहे हो, वक्ती सुकून। लेकिन अपना इस्माइल मत बनाइए। बाबरकत इज़हाक के लिए इंतज़ार कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। मुझे याद है कि जब मैं एक नई ईमानदार थी, खुदा में बहुत बहुत नई, मेरा एक पाँव दुनिया में था और दूसरा पाँव चर्च के अंदर था। और मैं कुछ इस तरह के हालात में थी कि सब चीज़ें अच्छी नहीं हो रही थी। आप में से कितने ये जानते हैं कि अगर आपका दिल, अगर आप खुदा के साथ ठीक से नहीं चल रहे, तो आप और ज़्यादा आजमाइशों में से गुजरते हैं जितना आप सोचते हैं। तो अगर आप खुदा के साथ ठीक नहीं चल रहे, ये आम है, एक आम जिंदगी की तरह कि आप आजमाइशों से गुजरें। और मुझे याद है, मैं बहुत सारी आजमाइशों से गुजर रही थी और मैं सोच रही थी क्यों? क्योंकि मेरी जिंदगी में वो तमाम चीज़ें थी जो
मैं नाफरमानी में करती आ रही थी और खुदा मुझसे खुश नहीं था, लेकिन वो जानता था कि अभी मैं छोटी मसीही थी। वो जानता था कि मैं अभी उसके कलाम को बेहतर तौर पर नहीं जानती और उसके पास मेरे लिए बहुत तरस था, मेरे लिए उसके पास बहुत फजल था। लेकिन मेरे दोस्तों, आपको बहुत फिक्रमंद और सब समझने वाला बनने की जरूरत है। आप नहीं जानते कि कब आप उसके रहम की छतरी से बाहर कर दिए जाएं। आप नहीं जानते। खुदा को गुस्सा मत दिलाएं कि वो ज्यादा गुस्सा हो। एक दिन जब मैं नौकरी नहीं करती थी, अपनी छोटी बच्ची के साथ, एक अकेली माँ बहुत चीजों के साथ लड़ते हुए, मुझे एक कॉल आई और वो एक पादरी थे और मैंने उनका नाम पहले कभी नहीं सुना था, पहले कभी नहीं मिली थी। और उन्होंने मुझसे एक खास आवाज और अंदाज से बात की और मैंने ये महसूस किया कि जैसे उनकी आवाज में इख्तियार है। और उन्होंने कहा, बहन इशिक, आप मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं और मेरी बीवी बहुत लंबे अरसे से आपके लिए दुआ कर रहे हैं। फला शख्स ने मुझे आपके हालात के बारे में बताया है कि आप किस तरह की आजमाइशों से गुजर रही हैं। मेरी बीवी और मैं, हमारे 2 बच्चे हैं, 2 बेटियां, एक की उम्र 5 साल और दूसरी की उम्र 7 साल है। हम चाहते हैं कि आप चंद दिन हमारे घर में ठहरें। और वो उस जगह से बहुत दूर था जिस जगह हम रहते थे, और मेरे पास गाड़ी में गैस भी नहीं थी। मेरी गाड़ी बिल्कुल खाली थी, तो मैं नहीं जा सकती थी। जब मैं नौकरी की तलाश में गई, मेरी गाड़ी में गैस नहीं थी कि उसे चला सकूं। और मैंने उन्हें अपने हालात के बारे में बताया और उनसे कहा, मैं आना चाहती हूँ, मैं वाकई आना चाहती हूँ, क्योंकि जब मैंने उनकी आवाज़ सुनी, मेरे दिल में कुछ हुआ कि इस शख्स के पास कहीं ज़्यादा है जितना खुदा मेरे लिए था। और उन्होंने कहा, अगर आप हमारे घर आएंगी तो हम आपके लिए दुआ करेंगे। मैं अपनी बीवी के साथ मिलकर आपके ईमान में आपकी हौसला अफजाई करूँगा। और मैं जाना चाहती थी और मैंने उन्हें बताया, मैं इसी हफ्ते की शाम आना चाहूँगी, लेकिन मेरी गाड़ी में गैस नहीं है, वो बिल्कुल खाली है, उसकी टंकी बिल्कुल खाली है। और उन्होंने मुझसे कहा, बहन, मैं जानता हूँ कि आपका ईमान बिल्कुल वैसा नहीं है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं अभी आपकी गाड़ी पर दुआ करूँगा और आपको इस जगह आ जाना है। एक नया ईमानदार होते हुए मैं नहीं समझ पाई कि वो क्या कह रहे हैं, और मैं आप में से किसी एक को भी मशवरा नहीं दूंगी। अगर खुदा आपको ये करने के लिए कह रहा है तो कीजिए। मैंने इसी तरह की बहुत सी गवाहियां सुनी हैं, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। उन्होंने कहा कि मैं आपको दावत दे रहा हूँ और यीशु मसीह के नाम से दुआ मांग रहा हूँ, आप हमारे घर पर ज़रूर आएंगी। आपको सिर्फ फर्माबरदार होने की ज़रूरत है और आपको सिर्फ अपनी गाड़ी में बैठने की ज़रूरत है, और आप किसी भी फिक्र के बगैर उसे चलाएंगी। लेकिन क्योंकि आपका ईमान कमज़ोर है और आप इस पर यकीन नहीं रखती जो मैं कह रहा हूँ, मैं आपसे अभी कह रहा हूँ, तकरीबन हर इलाके में जिसमें से आप गाड़ी चलाएंगी, मेरे पास्टर दोस्त रहते हैं। अगर आपकी गाड़ी बंद हो जाए, जो मैं जानता हूँ कि ऐसा नहीं होगा, वो आपकी मदद के लिए पहुँच जाएंगे। उस वादे के साथ और उस ताकत के साथ जो मैंने उनकी आवाज़ में महसूस की, मैं इसे जुनूनी हद तक करना चाहती थी। आप इसे एक बेवकूफ़ी की बात भी कह सकते हैं, लेकिन कई बार खुदा हमें कहता है कि हम बाहर निकल आएं और कुछ ऐसा करें जो हमें पसंद नहीं है, जो हमने कभी नहीं किया। और जब दुनिया में से लोग हमें देखते हैं, वो शायद ये सोचते हैं कि हम ज़हनी मरीज हैं, क्योंकि एक जिस्मानी शख्स का दिमाग कुछ नहीं समझता। एक दुनियावी शख्स कभी भी एक रूहानी शख्स के दिमाग को समझ नहीं सकता। ये एक दूसरे के बिल्कुल मुखालिफ है और एक दूसरे के मुतरादिफ है। और मैं उस शख्स के वादे में यकीन रखती थी, और मैं अपनी गाड़ी में गई और मैंने अपनी बेटी को मेरे साथ ही बिठाया। वो जुमे की शाम थी। मैंने गाड़ी चलाना शुरू की और मेरा गैस का टैंक वो ई की लाइट के साथ नजर आ रहा था। मेरे दिल में बड़ी कशमकश हो रही थी। मुझे यकीन है कि उस पहाड़ की जानब रास्ते में इब्राहिम जहां वो ऑल्टर बनाने को गया, वो तमाम तरह के मुश्किलात से गुजरा होगा, और खौफ से और सवालात और शक से भरा वक्त। तकरीबन सब कुछ ठीक ही था जो उसके दिमाग में था, लेकिन आखिर में वो कुर्बानी कर रहा था। वो उन तमाम खौफ को मौत के लिए सामने रख रहा था, और वो फिक्रें और सवालात भी। अपने छोटे से रास्ते में वो ऐसा कर रहा था। मैंने गाड़ी चलाना शुरू की, चलाती रही। आखिरकार हम किसी भी मसले के बगैर
ان کے گھر تک پہنچ گئے، اور اس وقت جیسے ہی ہم ان کے گھر میں داخل ہوئے، معجزہ وہاں ختم نہیں ہوا تھا کہ ہم 5 گھنٹے گاڑی چلا کر ان کے گھر تک آ گئے تھے۔ معجزہ وہاں ختم نہیں ہوا تھا۔ جیسے ہی میں ان کے گھر میں داخل ہوئی، وہ اپنے منہ کے بل ہو کر گر گئے۔ وہ 100% امریکی تھے اور کوئی زبان نہیں جانتے تھے۔ اس نے غیر زبانیں بولنا شروع کی، زبانوں میں دعا کرنے لگے، اور وہ جو کچھ کہہ رہے تھے مجھ تک پہنچا، میرے کانوں تک، ترکی کی زبان میں، اور میں ان کو ایسے سن رہی تھی جیسے وہ میری مادری زبان بہت اچھے سے بولتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، وہ میرے گناہوں کی معافی مانگ رہے تھے۔ وہ میرے لیے ایسا کر رہے تھے، خداوند خدا سے، کہ وہ مجھے اس گڑھے سے باہر نکال لے جس میں میں ایک بار پھر سے ہوں، کیونکہ میں نافرمانی میں زندگی گزار رہی تھی۔ اور وہ میرے ان گناہوں کی معافی مانگ رہے تھے جو میں نے کبھی کسی کو نہیں بتائے تھے۔ اور جب انہوں نے دعا ختم کی، آپ یقین کریں، ایک نئی ایماندار ہوتے ہوئے میرا کوئی تجربہ نہیں تھا، کچھ نہیں، زبانوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ میں تو بس برف کی طرح کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی۔ جب انہوں نے دعا ختم کی، انہوں نے مجھے دیکھا اور کہا، بہن، میں نہیں جانتا کہ میں نے کیا کہا، لیکن آپ جانتی ہیں کہ میں نے کیا کہا ہے۔ فرما بردار بنیے، کیونکہ خدا آپ کو استعمال کرنے والا ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ خدا صرف ہم سے چاہتا ہے کہ ہم فرما بردار ہوں، اور وہ میرے لیے تھا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ میری زندگی تبدیل کرنے والا تجربہ تھا، اور خدا ابراہیم سے کچھ مانگ رہا تھا جو اس کی زندگی تبدیل کر دینے والا تھا، کیونکہ اس نے ایک وعدہ قائم کیا تھا، وہ اسے اپنا دوست بلاتا تھا۔ ابراہیم خدا کے بہت قریب تھا۔ ہر امتحان، ہر آزمائش، جب ہم فرما بردار ہوتے ہیں، ہم خدا کے قریب اور قریب ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ ابھی یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں اور آپ کچھ عجیب حالات سے گزر رہے ہیں، اور اگر آپ فرما بردار رہیں گے، آپ اس کے کلام کے ساتھ وفادار رہیں گے، آخر میں آپ کے لیے یہ ایک جیت ہوگی۔ یہ میرا وعدہ نہیں، یہ اس کا وعدہ ہے۔ خدا آپ کو جلال اور جلال اور جلال اور جلال میں لے جائے گا کہ اپنی اچھائی دکھائے۔ وہاں ایک اور عورت تھی، وہ ایک یہودی عورت تھی۔ جب ہم بائبل کی تعلیم لے رہے تھے، اس نے ہمارے گھر آنا شروع کیا، اور وہ آئی تھی اور ایک کونے میں خاموشی سے بیٹھنے لگی۔ وہ بہت صحت مند نہیں دکھائی دیتی تھی، اس کی جلد کافی پیلی تھی، اور وہ بہت ہی مایوس دکھائی دے رہی تھی، کیونکہ وہ اس گروپ میں نئی تھی۔ ہم جانتے تھے کہ وہ یسوع مسیح پر ایمان نہیں رکھتی تھی۔ ہم اس کے ساتھ بہت خلوص اور محبت سے ملتے تھے۔ لیکن ایک رات جب وہ ایک صوفے پر بیٹھی تھی، بائبل کھولے اور بات کر رہی تھی، کوئی اور بھی اس سے بات کر رہا تھا، خدا نے میرے دل سے بات کی، اور خدا نے اس سے متعلق چیزیں مجھ پر ظاہر کی کہ مجھے اس وقت فرما بردار رہنا ہوگا۔ اور میں اس کی طرف مڑی اور میں نے اس سے کہا، بہن، آپ جادو کرتی ہیں، آپ زندگی کا حال بتانے والوں کے پاس جا رہی ہیں، آپ ذائچہ میں ہیں، آپ پوری طرح سے مخالفت میں ہیں، اور خدا مجھے ابھی آپ کو یہ بتانے کے لیے کہہ رہا ہے، اگر آپ نافرمان رہیں گی، آپ اپنی زندگی کو کھو دیں گی۔ اور یہ عورت اچانک جیسے صدمے میں آ گئی، وہ اپنے پاؤں کے بل جھک گئی اور مجھے دیکھنا شروع کر دیا اور کہا، مجھے اور بتاؤ، مجھے اور بتاؤ، اور اس نے رونا شروع کر دیا، روتی رہی۔ تم کس طرح یہ باتیں جان سکتی ہو؟ اور میں نے اس رات اسے دوسری باتیں بھی بتائیں جو بہت ہی ذاتی تھی۔ تم کس طرح یہ باتیں جانتی ہو؟ اور میں نے کہا، یہاں تک کہ ابھی بھی جب تم مجھ سے یہ پوچھ رہی ہو کہ میں یہ باتیں کس طرح سے جانتی ہوں، ٹھیک اسی چیز کی امید کر رہی ہو جس کی امید تم جادوگروں سے کرتی ہو۔ لیکن میں تمہیں بتاتی ہوں، میں ایسی کوئی چیز نہیں سن رہی جو میں تمہیں بتا رہی ہوں، کسی بھی بدروح سے نہیں، بلکہ خدا کے پاک روح سے۔ خدا مجھے یہ باتیں بتا رہا ہے، اور اگر تم نے یہ سب نہ چھوڑا جس طرف تم بڑھ رہی ہو، تم اس زندگی میں تباہ ہو جاؤ گی، اور تم اس زندگی کے بعد بھی برباد ہو جاؤ گی۔ اس دن اس نے اپنی زندگی مسیح کے حوالے نہیں کی، لیکن وہ میرے پاس آئی اور مجھے بہت پوشیدگی میں بتایا۔ جب کبھی میں یسوع مسیح کے نام کو سنتی ہوں، بہن عشق، میرا جسم چیختا ہے۔ اس نے کہا، میں اسی طرح سے بڑی ہوئی ہوں،
मैंने इसी तरह से सीखा है। आज शायद आप ये प्रोग्राम देख रहे हो और आप एक यहूदी हैं और आप भी बिल्कुल इसी तरह से महसूस कर रहे हैं। और मैं आपको ज़रूर बताऊंगी क्यों नहीं यीशु मसीहा हो सकता। आप क्यों मसीहा के आने का इंतज़ार कर रहे हैं और ये नहीं सोचते कि वो पहले से आ चुका है? क्यों नहीं? आप क्यों खुदा की हदबंदी कर रहे हैं? ना सिर्फ इस दुनिया में हदबंदी, बल्कि आप हमेशा खुदा की हदबंदी कर रहे हैं और वो पहले आपके लिए आया है, फिर गैर यहूदियों के लिए। वो मीटिंग में आना शुरू हो गई और मीटिंग में आती रही और फिर आखिरकार एक दिन उसकी सेहत बदतर होना शुरू हो गई और बदतर। जब हम उसे ऐसे बीमार देख रहे थे, मैं उसे बता रही थी, बहन, मैं ईमान से उसे बहन बुला रही थी, तुम्हें फर्माबरदार होने की ज़रूरत है। फर्माबरदारी में एक मौजज़ाना ताकत है, ताबेदारी में बहुत मौजज़ाना ताकत है। और आखिरकार उसकी सेहत और ख़राब हो गई और वो इतनी बुरी हालत में थी और वो उस वक्त तक आ पहुंची थी कि उसे अपनी ज़िंदगी, अपनी मर्जी और खुद को यीशु के हाथों में सौंपना था। आज वो औरत खुदा के हाथों में एक ज़बरदस्त हथियार है। आज वो औरत जो कहती थी, जब मैं यीशु का नाम सुनती हूँ मेरा जिस्म चीखता है, वो यीशु मसीह के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। वो जब कभी ये नाम सुनती है उसे बहुत अच्छा लगता है, मैं हाजिर हूँ, मुझे भेजो। जब कभी हमें चर्च में किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, वो सबसे पहली होती है जो फौरन सामने आकर कहती है, मैं ये करूँगी। और वो खुदा की फर्माबरदार खादमा बन गई हैं। मेरे दोस्तों, खुदा का खादिम होने से ऊंचा लक़्ब और कोई नहीं हो सकता। आप अपनी मिनिस्ट्री की ज़िंदगी में आप बेहतर और ऊंचा दर्जा हासिल नहीं कर सकते, जो कि मिनिस्ट्री में ऐसा नहीं होता कि आप ऊंचा दर्जा हासिल करें। इब्राहिम खुदा का खादिम कहलाता था, अय्यूब खुदा का खादिम कहलाता था, सैमुअल, दाऊद और मसीही तारीख में बहुत से ईमान के बुर्ज खुदा के खादिम ही कहलाए हैं। शायद आज खुदा आपको नौकरी के लिए बुला रहा हो, एक छोटे लक़ब पर, उसकी खिदमत की जगह, और यही उसका खादिम होना है। और उसको शुरू करने के लिए आपको उसकी आवाज़ पर फर्माबरदार होना होगा। आज यीशु मसीह को पुकारिए। अगली बार तक के लिए खुदा आपको बरकत दे।